کیا کیا کر رہے ہو؟ اتارو مجھے نیچے۔ وہ فوراً ہی اپنے دشمن جا کی باہوں میں پینک ہو کر چیخنے لگی، گاڑی میں تمہیں نہیں جانا، پیدل تم نہیں چل سکتی، اور کوئی آپشن بچا ہے میرے پاس؟ اب چپ، میں پوری رات روڈ پہ نہیں گزار سکتا تمہارے لیے، صبح آفس بھی جانا ہے مجھے۔ اس بار وہ خاصا برہمی سے ڈپٹنے لگا۔ وہ جب بھی فرح کو اپنی بھاؤں میں لیتا تھا اسے ایک چیز ضرور حیران کرتی تھی، آخر اس لڑکی کا وزن کیوں نہیں ہے، وہ کیوں اتنی پھول جیسی ہے؟ فرح اپنے ہوش میں پہلی بار کسی لڑکے کے اتنا قریب آئی تھی، مارے شرمندگی کے اس کی آنکھیں جھک گئی تھی۔ وہ لڑکا نہیں جانتا اس کے دل کی مدھم سی چلتی آواز وہ لڑکی سن سکتی تھی۔ تم اپنی گاڑی منگا لو پلیز، منتی انداز میں منمنائی۔ وہ بہت شرمسار ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی تھا کہ کوئی انہیں یوں دیکھ نہ لے۔ شرمساری، ڈر، خوف ایک طرف اور اپنے دشمن جاں کی دھڑکنوں کا سننا ایک طرف، دھڑکتے دل کی وہ شواز اس کے کانوں سے ہوتی دل تک پہنچ رہی تھی۔ ویلکم ٹو اوور چینل نوویز بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتے چلوں، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، مزے میں ہوں، انجوائے کر رہی ہوں، اور میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں دھڑکتے دل کی ایپیسوڈ 37۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ایپی ہے، تو مزہ آنے والا ہے یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، سنیے آپ لوگ بھی۔ وہ پہلی بار اس راستے پر آئی تھی، آتے وقت تو دکانیں کھلی ہوئی تھی اور لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، اس وجہ سے اسے اتنا پتہ نہیں چلا، لیکن اب واپسی پر جب اندھیرا چھا گیا اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور دکانیں بھی بند ہو چکی تھی، تو اس بیچاری کو راستہ سمجھ ہی نہ آیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھاگتے بھاگتے سب سے پہلے سامنے آنے والی گلی میں گھس گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کے خوف سے راستہ بھٹک کر غلط جگہ آ گئی ہے، یہ اس کا روڈ نہیں تھا گھر جانے کا۔ کافی دیر سے بھاگنے کے سبب اس کے لنگس میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا، جس کے سبب وہ مزید نہیں بھاگ سکتی تھی۔ لہنگا سنبھالے سنبھالے ابھی وہ اندھیری سنسان گلیوں میں بھاگ ہی رہی تھی کہ اس نے پھر خوف کے مارے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اچانک سامنے سے کسی ٹھوس چیز سے ٹکرائی۔ بے ساختہ ہی چیخی۔ وہ اتنا گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کا دماغ کام ہی نہ کیا، بھاگتے بھاگتے سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے اپنے دشمن جاں کو کھڑا پایا۔ کیا ہوا ہے اور تم یہاں اتنی رات کو اکیلے کیا کر رہی ہو؟ ڈونٹ سے کہ تم جیسی کنگال کے پیچھے بھی چور لگ گئے ہیں۔ آخری جملہ اس نے مضحکہ خیز انداز میں استفسار کیا۔ کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو یقیناً وہ فکر مند ہو جاتا اس لڑکی کے لیے، مگر وہ شخص، وہ تو الٹا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ ہڑبڑاہٹ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے بتانے لگی۔ وہ اتنا گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے ابو ذر کے مذاق پر تو دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ ابو ذر نے اس کے پیچھے نگاہ ڈالی تو وہ ٹیکسی ڈرائیور اسے دیکھ کر بھی مسکرا رہا تھا، لیکن اس بار اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ جواباً ابو ذر بھی مسکرایا اور اپنے دو ہاتھ اس کی انگلیاں پیشانی پر لگا کر سلیوٹ مارتے اللہ حافظ کہا۔ فرح اتنا گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ ابو ذر اس ٹیکسی ڈرائیور سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ بات کر رہے۔ وہ انا کو چھوڑ کر اپنے گھر جا رہا تھا جب اس کی نگاہ راستے میں پتھر سے کھیلتی ایک لڑکی پر گئی۔ اس لہنگے والی لڑکی کو سنسان سڑک پر پتھر سے کھیلتا ہوا دیکھ اس کا خون کھول گیا تھا۔ کیا سوچ کر وہ لڑکی اکیلے نکلی ہوئی تھی؟ کیا اسے نہیں پتا حالات کتنے خراب چل رہے ہیں آج کل؟ اوپر سے بجائے جلدی جلدی گھر جانے کے روڈ پہ کھڑے ہو کر پتھر سے کھیل رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس معصوم فرشتہ صرف لڑکی کو جو ملک کے حالات سے شدید ناشنا ہے، 22-23 سال کی ہو کر بھی 2 سال کے بچوں والی حرکتیں کر رہی ہے، اسے سبق سکھانے کی اشد ضرورت ہے۔ صرف اسے سبق سکھانے کے لیے اس ایک نمبر کے کنجوس لڑکے نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو پورے 500 روپے دیے تھے اسے ڈرانے کے، یہ کہہ کر کہ اس کی بیوی کو تھوڑا سا سبق سکھانا ہے تاکہ وہ آئندہ سیدھے سیدھے گھر آئے، بجائے روڈ پر بچوں کی طرح پتھروں سے کھیلنے کے۔ چلا گیا ہے وہ۔ ویسے کہاں سے آتے ہیں تم جیسے عقل مند لوگ؟ مطلب کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا محترمہ؟ پاگل خانے کا بھی کوئی اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہوگا، مجھے یقین ہے تم جیسے کے لیے۔ ابو ذر نے اسے اب ٹکا کے ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ 10-12 سال کی لڑکی ہوتی ہے نا، اسے بھی عقل ہوتی ہے کہ سنسان سڑک پر چلنا اس کے لیے خطرناک ہے، مگر تم تو بھائی واہ، مطلب کمال، بے مثال، آپ تو اتنی معصوم ہے، اتنی معصوم کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی معصومیت پہ قصیدے لکھ ڈالوں۔ دانت پیس کر آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس کی جانب دیکھ مسکرا کر بھگو بھگو کر جوتے مارنے لگا۔ ابو ذر خود بھی نہیں جانتا وہ اتنا غصہ کیوں تھا اسے لے کر، کیوں اس کی سیفٹی اسے اپنی ذمہ داری لگ رہی تھی، کیوں وہ اتنا جل گیا تھا اس لڑکی کی لاپرواہی سے۔ مطلب تمہیں کوئی عقل ہے کہ نہیں؟ اس بار وہ چیخا اور اس کے اچانک چیخنے پر وہ سہم کر ایک قدم اس سے دور ہٹی، مگر تھاما ہوا ہاتھ پھر بھی نہ چھوڑا۔ تم اتنی غریب تو نہیں ہو کہ ایک ٹیکسی افورڈ نہ کر سکو؟ پھر کیا کر رہی تھی تم روڈ پر اکیلے؟ نہایت برہمی سے ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر آئی برو اٹھا کر تفتیشی انداز میں استفسار کیا۔ وہ رکشہ نہیں مل رہا تھا، بے بسی سے بولی۔ اس کا پورا وجود ابھی بھی لرز رہا تھا مارے خوف کے، دل کو سکون نہیں آیا اس کے ابھی تک، اور اس پر ابو ذر کا یوں چیخنا اس کی خوبصورت نینوں میں نمکین پانی بھر لایا۔ جب پتا تھا کہ رکشے میں جانا ہے تو پہلے نکلتی نا، رات کے 12 بجے تمہارا باپ لے کے پھر رہا ہے رکشے؟
जिंदगी में वो पहली बार किसी लड़की पे चीख रहा था और वो खुद भी नहीं जानता क्यों। चीखो मत, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पर यूं चीखने का। भागने के सबब उसका पूरा जिस्म पसीनों से शराबोर था, बाल गर्दन से चिपक गए थे पसीनों की तरी के सबब, और सर से दुपट्टा उतर चुका था, नाक और आंखें सुर्ख पड़ रही थी, उसके सुर्ख होंठ लरज रहे थे। वो लड़की नहीं जानती, लेकिन वो अपनी एक निगाह से किसी को भी घायल कर सकती थी, इतनी दिलनशीन लग रही थी इस लम्हे। इस हसीन लड़की ने मुकाबिल को रूहानसा लहजे में टोका तो एक दो सानियों के लिए वो लाजवाब हुआ, क्योंकि सच यही था कि उसका कोई हक नहीं बनता था यूं फराह पर चीखने या डपटने का। क्यों हक नहीं बनता? तुम मेरे दोस्त की साली हो, मेरे जिगरी दोस्त की, मेरे बचपन के यार की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसकी बीवी उसे ना छोड़ती, और वो मुझे अपनी बात बनाए रखने के लिए कुछ तो कहना था। आखिर ये जाहिर थोड़ी कर सकता था कि फिक्र में मर रहा है उसकी। फिलहाल घर में चलो पहले। वो तेजी से मुड़ जाता, लेकिन उसे एहसास हुआ कि फरह ने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा है। उसका जुमला सुनते ही फरह की आंखें भट्टा सी खुली, और उसने फौरन ही अपने दोनों हाथ पीछे की जानिब खींचे। क्या मुकाबिल उसके हाथ पकड़ने का गलत मतलब अखज़ कर गया था? जब इस लहंगे में मलबूस गुड़िया ने अपने दोनों हाथ उसके हाथ से दूर किए, तो उसने महसूस किया कि उसके हाथ में एक अजीब-सा खालीपन आ गया है। वो जो नरमी और लम्स की गरमाई थी, वो दोनों एक लम्हे में गायब-सी हो गईं। इस लड़की के हाथ दूर होते ही और उसे खालीपन का एहसास होने लगा। उसने एकदम अपने हाथ को देखा, जो अब खाली था। ये हाथ तो हमेशा से ही खाली था, फिर आज इतना क्यों महसूस हो रहा था? मैं तुम्हारे घर क्यों जाने लगी भला? देखो, मैं डरी हुई थी, सिर्फ़ इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ा, और कोई वजह नहीं थी। कोई गलत मतलब अखज़ मत करो। उसने साफ लाल झंडी दिखाई और फौरन ही मुड़कर जाने लगी। अभी 1-2 कदम ही चली थी कि उसका बाजू पीछे से किसी ने पकड़ा। मैं तो सिर्फ़ इंसानियत की खातिर पानी का पूछने के लिए तुम्हें घर ले जा रहा था, और तुम पता नहीं क्या-क्या। उसने सर नफ़ी में झटका और अपना जुमला दानिस्ता तौर पर अधूरा छोड़ा। उसकी पूरी बात सुन मुकाबिल शर्मिंदा सी हुई। चाहो तो मैं छोड़ने चल लेता हूँ तुम्हें, वरना तुम खुद जा सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं। नहायत लापरवाही और बेनियाज़ी से कहा, क्योंकि जानता था अगर फ़ोर्स करेगा तो वो लड़की गलत मतलब अख़ज़ करने में देर नहीं लगाएगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो टैक्सी वाला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो खौफ़ज़दा थी। पैदल चलोगे मेरे साथ? मुझे छोड़ने? इस लड़की के लहज़े में हिचकिचाहट नुमाया थी, ये सवाल करते वक़्त। क्यों? कार में मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँगा, इस बात का डर है तुम्हें? फ़रा को इतने डायरेक्ट सवाल की उम्मीद नहीं थी। अबू ज़र से माना वो यही सोच रही थी, लेकिन फिर भी वो एक लम्हे के लिए बौखला गई। इतना हाई मत सोचो अपने बारे में, कोई हसीन परी नहीं हो तुम, जिसे देख के मैं पागल हो जाऊँ और अपने आप पर कंट्रोल खो बैठूँ। वो सिर्फ़ नशे में हुई गलती थी। अगले ही लम्हे इस लड़की का पकड़ा हुआ बाजू अपनी जानिब खींचा तो वो मोम की नाजुक गुड़िया एक झटके से उसके सीने से आ लगी, यूं अचानक हमले के लिए, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर तैयार न थी। इसलिए हैरत के मारे उसकी आंखें बाहर उबल आने को हुई। गलती? आहिस्तगी से दोहराया। हाँ, बस गलती ही तो थी। उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, पूरा फ्यूचर तबाह हो गया, और मुकाबिल के लिए वो सिर्फ़ एक गलती थी। वो पहले से ही वाकिफ़ थी कि अबूज़र जैसे प्ले बॉय के नज़दीक वो रात गलती के सिवा कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद उसके मुँह से सुनने में तकलीफ़ हो रही थी। बहुत अज़ियत कि पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, हमारी और तुम्हारे नज़दीक सिर्फ़ गलती ठहरा। इतनी लापरवाही से मुकाबिल ने ये आखिरी जुमला अदा किया था कि वो ना चाहते हुए भी टूट गई। इस लड़की का रूहानसा टूटे बिखरे अंदाज में ये कहना है कि हाँ, बस गलती ही तो थी। ना जाने क्यों अबू ज़र के दिल को जाकर लगा, वो नहीं चाहता था कि वो लड़की तस्दीक करे कि ये गलती है। वो नशीले नैना जिनमें सुर्ख डोरे सजे थे, उन्हें मज़ीद देखते रहने की अब अबू ज़र में ताब ना थी। इसलिए बाजू छोड़कर तेज़ी से मुड़कर चलने लगा। फरह अपनी जगह मुंजमद खड़ी हसरत और शिकवे भरी निगाह से उसकी पुश्त को तक रही थी, और वो चलता चला जा रहा था। क्या क्या चाहती हो कि गोद में उठा के लेके चलूं? अबू ज़र ने पूछे। मुड़कर देखा तो वो लहंगे में मलबूस लड़की अपनी ही जगह साकित खड़ी थी। ये देख मुंह बसोरकर दुनिया जहाँ की झिंझलाहट और उकताहट अपने लहजे में समोए तंज़िया इस्तफ़सार किया। उसका तंज़िया सवाल सुनने के बाद फरा को एहसास हुआ कि वो संगदिल उसके साथ पैदल चलने के लिए तैयार हो गए। वो फौरन ही नफ़ी में सर हिलाती उजलत से उसके पीछे आई। अबू ज़र अपनी बॉडी का बहुत ख़्याल रखने वाला शख़्स था। रोज़ाना 1 घंटे जॉगिंग करना और दीगर एक्सरसाइज़ करना उसका मामूल था। इसलिए पैदल चलना उस नौजवान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। हाँ, उसके बरक्स फरा बहुत कम चला करती थी, और जब से ऑपरेशन हुआ था इसके बाद तो उसने चलना और भी कम कर दिया था। टैक्सी ड्राइवर के खौफ के सबब जो वो भागी थी, इसकी वजह से उसके पाँव की जान मुकम्मल निकल चुकी थी। थोड़ी देर तक तो मरे-मरे कदम चलकर उसने अपने वजूद को घसीटती रही किसी तरह, लेकिन अब हाल ये था कि उससे एक कदम तक नहीं चला जा रहा था। वो अपने घुटनों पर हाथ जमा कर लंबे-लंबे साँस भरने लगी। पैदल चलने का आइडिया उसी का था, इसलिए अब वो अबू ज़र से कुछ कह भी नहीं सकती थी। इस संगदिल से मज़ीद ज़लील थोड़ी होना था। तुम्हें मेरी कंपनी इतनी ही पसंद है तो ऐसे ही बता दो, ये फालतू में चला-चला के क्यों मार रही हो? जिस स्पीड से वो लड़की चल रही थी, यकीनन सुबह हो जाती, लेकिन वो घर ना पहुँचते। आखिरकार वो झुंझला के पूछ ही उठा था, हाँ?
किसे पसंद है तुम्हारी कंपनी? मुँह बसोरकर तंज़िया इस्तफ़सार किया। मेरे पाँव ज़ख्मी हो गए इन खूसों से, इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा। ऊपर से मैं पहले ही इतना भाग चुकी हूँ कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है अब एक कदम भी मज़ीद चलने की। फरहा ने ये कहते हुए अपने पाँव पर से लहंगा थोड़ा ऊँचा किया ताकि उसे अपने खूसे दिखाए और दिखाए कि उसकी एड़ी तक ज़ख्मी हो गई है, जिसमें हल्का-सा खून निकल रहा है। तुम ये पहन लो। वो दूधिया सफ़ेद संगमरमर से तराशे पाँव इन मामूली से ब्लैक रंग के खूसों में भी अलग ही चमक रहे थे। उसकी एड़ी वाक़ई ज़ख्मी हो चुकी थी। ये देख मुकाबिल ने फ़ौरन ही अपने जूते उतार कर उसके आगे किए, बगैर इस बात की परवाह किए कि वो खुद क्या पहनकर चलेगा रोड पर। अबू ज़र जैसा संगदिल शख्स उसे अपने जूते दे रहा था, ये बात हज़म करने में ही उसे काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। वो बेयकीन से उसे देखने लगी। क्या आप पहन भी लो? फ़रह उसे बहुत बेयकीनी और हैरत से तक रही थी। यही सबब था कि वो शदीद झिंझलाकर गोया हुआ। वो नहीं चाहता था कि फ़रह समझे कि उसके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए, मगर ये भी सच था कि वो उसे इतनी तकलीफ़ में खूसे पहनकर मज़ीद चलने नहीं दे सकता था। अगर मैं तुम्हारे जूते पहन लूँगी, तो तुम क्या सिर्फ़ ये मोज़े पहनकर चलोगे रोड पर? नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी किसी तरह, तुम पहन लो अपने जूते वापस। मुकाबिल ने लचकदार अंदाज़ में इनकार किया। पहली बार वो जंगली बिल्ली इतनी लाइट टून इस्तेमाल कर रही थी इसके लिए कि मुकाबिल को हज़म ना हुई। वो अपने कान उँगली से मसलते हुए उसके मुँह के करीब लाया। दोबारा बोलना, तुमने क्या बोला? यही कहा कि पहन लो अपने जूते, मैं मैनेज कर लूँगी। वो अचानक करीब आया था, उसके परफ्यूम की मीठी महक फ़रह की नाक को लगी, जिसके सबब वो एक कदम दूर आहिस्तगी से सरगोशी करने लगी। तुम कुछ ज़्यादा फ़िक्र नहीं कर रही मेरी? प्लेफुल अंदाज में मुकाबिल के नशीले नैनों में झाँकते होठों पर प्यारी सी मुस्कान सजाए इस्तफ़सार किया। हाँ, तुम्हारी फ़िक्र, माई फुट। खासा जिज़्बज़ होकर दाँत पीसते हुए कहा, मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम्हारे ब्रांडेड मोज़े मेरी वज़ह से फटें और फिर मुझे उसकी भरपाई करनी पड़े, निहायत जताते हुए जवाब दिया, जिस पर मुकाबिल उसे मुँह बसोर देखने लगा। और फिर अपने जूते पहन लिए वापस। जूते पहनते ही उसने अगला काम फ़रह को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करने का किया। अबू ज़र के नज़दीक वो उसे तीसरी बार कैरी कर रहा था, जबकि फ़रह के नज़दीक ये पहली बार था ज़िंदगी में जब उसे किसी मर्द ने कैरी किया हो यूँ ब्राइडल स्टाइल में। यही सबब था कि मारे हैरत के उसकी आँखें फटी। क्या कर रहे हो? उतारो मुझे नीचे। वो फ़ौरन ही अपने दुश्मन-ए-ज़ा की बाहों में पैनिक होकर चीखने लगी। गाड़ी में तुम्हें जाना नहीं, पैदल तुम नहीं चल सकती और कोई ऑप्शन बचा है मेरे पास? अब चुप, मैं पूरी रात रोड पर नहीं गुज़ार सकता तुम्हारे लिए। सुबह ऑफिस भी जाना है मुझे। इस बार वो खासा बेरहमी से डपटने लगा। वो जब भी फ़रह को अपनी बाहों में लेता था, उसे एक चीज़ ज़रूर हैरान करती थी, आखिर इस लड़की का वज़न क्यों नहीं है? वो क्यों इतनी फूल जैसी है? फ़रह अपने होश में पहली बार किसी लड़के के इतना करीब आई थी, मारे शर्मिंदगी के उसकी आँखें झुक गईं। वो लड़का नहीं जानता उसके दिल की मद्धम सी चलती आवाज़ वो लड़की सुन सकती थी। तुम अपनी गाड़ी मंगा लो प्लीज़, मिन्नती अंदाज़ में मुनमनाई। वो बहुत शर्मसार हो रही थी, साथ-साथ ये डर भी था कि कोई उन्हें यूँ देख ना ले। शर्मसारी, डर, खौफ एक तरफ और अपने दुश्मन-ए-जाँ की धड़कनों का सुनना एक तरफ। धड़कते दिल की वो आवाज़ उसके कानों से होती दिल तक पहुँच रही थी। मुकाबिल ने उसकी बात सुन घूर कर देखा। इस लड़के के चेहरे पर छाई सुर्खी और झुकी नज़रें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो अनकम्फ़र्टेबल है। मज़ीद कोई बहस किए बगैर उसे नीचे खड़ा किया, खुद थोड़ा-सा दूर हटकर अपना सेल पॉकेट से निकाला और ड्राइवर को कॉल की। वो दोनों ही ड्राइवर के इंतज़ार में फुटपाथ पर बैठ गए थे। फ़रह की निगाह हर तरफ घूम रही थी, सिवाय अबूज़र के चेहरे के। तुम्हें समीर पसंद है ना? अचानक ये सवाल सुन वो लड़की उसकी जानिब मतवज्जह हुई। बहुत। उसने इनकार नहीं किया बल्कि उल्टा खासा जताते हुए जवाब दिया, बहुत पसंद है। वो दोनों दोस्त नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद किरण के बाद वो पहला था जिसे वो अपने दिल की बात बगैर हिचकिचाहट के बता रही थी। पहली ही निगाह से पसंद आ गए थे। मुकाबिल ने कोई ख़ास तासुर ना दिया, फ़क़्त इस बात में सर हिलाने लगा। ये झूठ होगा अगर वो कहे कि उसे अंदाज़ा नहीं था इस बात का। फ़रह जिस तरह समीर को देख के शर्माती थी, कोई अंधा भी बता सकता था कि वो उसे पसंद करती है। मगर अजीब बात ये थी कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था इस लड़की के मुँह से ये एतराफ़ सुनना। अगर हमारे दरमियान वो सब ना हुआ होता, तो यकीनन मैं अब तक तो बेशर्म बनकर उन्हें प्रपोज़ तक कर चुकी होती। अबूज़र ने इस लम्हे सिर्फ़ इस लड़की की आँखें देखीं, वो चमक रही थी ये बोलते वक़्त। वो चमकते नैना ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो कितना पसंद है उसे और वो कितना पछताई है इस रात के सबब आज भी। मुकाबिल अब बेदर्दी से होंठ चबाने लगा था, इस कदर बेदर्दी से कि उसके होठों से खून छलकने लगा। ओह! खून निकल रहा है तुम्हारे होठों से? उसके टोकने पर अबूज़र ने अपना अंगूठा होठों पर मिस किया, फिर हटाकर देखा तो वो लाल था। अगले ही पल अपने दूसरे हाथ से पॉकेट से रुमाल निकालकर सुर्ख़ होठों को बेदर्दी से रगड़ डाला। क्या कर रहे हो? नरमी से करो, वरना और ज़ख्मी हो जाएँगे होंठ। मुकाबिल को अपने होंठ यूँ रगड़ता देख वो चाहकर भी चुप ना रह सकी। तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो? समीर के होंठ नहीं है, ये मेरे हैं। वो ख़ासा नरोटे लहज़े में कहता जलकर खड़ा हो गया था, जबकि मुकाबिल उसे उलझकर देखने लगी। हाँ? फ़रह समझ ही ना सकी मुकाबिल को अचानक हुआ क्या है? अभी वो इस तंगदिल को उलझी निगाह से तक ही रही थी कि उनके आगे गाड़ी आकर रुकी और उसमें से अबू ज़र का ड्राइवर बाहर निकला। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। गाड़ी का सफ़र फिर ख़ामोशी से तय हुआ।
फरा को गाड़ी से उतरना था तो अबूजर गाड़ी से बाहर नहीं निकला। उसके ड्राइवर ने उतरकर फरा के लिए डोर खोला। उसने गाड़ी में बैठते ही अपने घूंसे उतार दिए थे क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही थी उससे, इसलिए उन्हें हाथ में लेकर ही गाड़ी से उतरी। अबूजर की गाड़ी से उतरने वाली वो पहली लड़की थी, जूते हाथ में लेकर उतर रही थी। उसका ड्राइवर भी फरा को हैरत और ताज्जुब से देखने लगा। अबू जर की हर गर्लफ्रेंड बहुत हाई क्लास की होती थी, मॉडल, एक्ट्रेस या कोई अमीर बाप की बिगड़ी शहजादी। ये पहली बार देखा था उसके ड्राइवर ने कि वो एक मिडिल क्लास लड़की के साथ था। फरा मुस्कुराकर ड्राइवर का शुक्रिया अदा करती फौरन ही अंदर की जानिब बढ़ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो वो फौरन ही अबूजर की आवाज आई, वेट, पहले अंदर जाने दो उसे। ड्राइवर को हैरत हुई, अबूजर लड़कियों की फिक्र करने वालों में से नहीं था। वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड की इतनी फिक्र नहीं करता था कि उन्हें घर के अंदर तक बहिफाजत छोड़े, सिवाय अना के, और वो लड़की अना नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद वो जैसे अना की फिक्र करता था वैसे ही उसकी कर रहा था, और ये बात ड्राइवर को बहुत ताज्जुब में मुब्तला कर गई। अबू जर ने देखा वो लिफ्ट में दाखिल हो गई है, फिर भी गाड़ी को चलने ना दिया। अपना सेल निकालकर उसे कॉल की। दूसरी जानिब फरा अपने अपार्टमेंट का डोर खोल रही थी चाबी से। जब उसका सेल रिंग हुआ, अपनी कमर पर लटके पर्स से सेल निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था। एक दो सानियों तक सोचने के बाद उसने कॉल रिसीव की। हेलो, घर में दाखिल हो गई तुम? दूसरी जानिब से अबूजर की आवाज पर वो खासा हैरान होकर अपने सेल कान से हटाकर वापस नंबर देखने लगी। तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? दोबारा सेल कान से लगाते खासा हैरानगी के आलम में इस्तफसार किया। घर में दाखिल हुई या नहीं? अबूजर का मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था। वो इस लड़की से अब कोई बात नहीं करना चाहता सिवाय इसके कि वो घर में दाखिल हो गई है बहिफाजत या नहीं। उसके निहायत नरोटे लहजे में पूछते ही फरा ने दांत पीसे। पहुंच गई, अब बताओ मेरा नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास? अभी वो पूछ ही रही थी कि दूसरी जानिब से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे कॉल डिस्कनेक्ट करने की, अकड़ू कहीं का, बंदर ना हो तो। वो मुंह ही मुंह में कड़कड़ाती अंदर दाखिल हो चुकी थी। चलो, सेल को पॉकेट में डालता वो सेट सीट से टेक लगाकर आंखें मूंदते हुए हकीमाना अंदाज में गोया हुआ, ज़ैनब नामी बच्ची की डिटेल निकलवाओ, वो भी जल्द से जल्द, और हाँ, बहुत संभल कर इन्फॉर्मेशन निकलवाना। वकास अब्बासी को भिनक नहीं लगनी चाहिए इस मुतालिक। कुछ देर ही गुजरी थी कि ड्राइवर ने अबूजर को किसी से सेल पर बात करते सुना। सर, आप कुछ जानते हैं इस बच्ची के मुतालिक तो हमें बता दें ताकि आसानी हो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन जमा करने में। सेल पर दूसरी जानिब मौजूद शख्स गंभीर लहजे में इस्तफसार करने लगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता इस बच्ची के मुतालिक। शायद वो वकास, और वो कहते कहते रुका, जिसे जबान साथ ना दे रही हो, फिर मुट्ठियां मजबूती से भींचता हिम्मत जमा कर अपना जुमला मुकम्मल किया। वकास और अना की बेटी है। अगला सीन। वो रोज मामूल की तरह सुबह उठकर फ्रेश होने चला गया। जब वापस आया तो अलमारी में एक सूट ना था। ये देख वो खासा गुस्सा होकर चीख चीख कर अपने मुलाजमीन को बुलाने लगा। जी सर, आपने बुलाया? उसका मुलाजिम फौरन दौड़ा चला आया था। सर झुकाकर नहायत शाइस्तगी से इस्तफसार किया। मेरे सारे कपड़े कहाँ हैं? नहायत बरहमी से पूछा। वो आपके सारे कपड़े तो उमर सर आकर ले गए हैं। बस इस मुलाजिम का कहना था कि अबू सर ने अपनी पेशानी मसली। मेरा सेल ला कर दो जल्दी। नेहान गुस्सीले लहजे में अपना सेल मंगवाया। मुलाजिम भी फौरन ही बेड की साइड टेबल से उठाकर ले आया। पहुंच गए? उसने फौरन ही वकास को कॉल की थी। दूसरी जानिब से पहली ही रिंग पर कॉल रिसीव हुई। जैसे कॉल के इंतजार में ही बैठा हुआ। कॉल कनेक्ट होते ही निहायत संजीदगी से सवाल किया गया। दफा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। जाएगा तो तेरा बाप भी। दूसरी जानिब से पूरे एतमादी से कहा गया। तो मेरे बाप को ले जा भाई, मुझे छोड़ दे, माफ कर दे मुझे। पहल पर ही उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। बस देख ली तेरी दोस्ती, एक नींद कुर्बान नहीं कर सकता ना तू मेरे लिए? दूसरी जानिब से की जाने वाली इमोशनल ब्लैकमेलिंग अबूजर को हक्का बक्का कर देने के लिए काफी थी। अब इससे तो वकास खड़ी अच्छा था। वो यही सोच रहा था। बस ये दिन देखना रह गया था। अबूजर, तेरी जिंदगी में कि वकास अब्बासी जैसे लोग भी तुझे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, हद हो गई। वो अपने दांत पीसते हुए जेरे लब बड़बड़ाया। अगला सीन। वो वकास के ऑफिस पहली बार नहीं आई थी, लेकिन फीलिंग्स पहली बार जैसी ही थी। जिंदगी में कभी उससे बात करने में इतना डर नहीं लगा था जितना आज लग रहा था, क्योंकि कल जिस तरह उसने सबके सामने बात की वो बहुत अजनबियत भरी थी। किरण ने आहिस्तगी से दरवाजा नॉक किया। कमिंग। वो नहीं जानती, मुकाबिल सुबह से उसी के इंतजार में बैठा हुआ था। इजाजत मिलने पर जैसे ही डोर खोला वो दम बखुद रह गई। सबसे पहले जो चीज नाक से टकराई वो थी गुलाबों की खुशबू और आंखें। आंखें जो मंजर देख रही थी उन पे यकीन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लगा। सफेद टाइल्स की जमीन की जगह आज उसकी कदमों के नीचे गुलाबों की पत्तियां बिछी हुई थी। सोफे के ऊपर हार्ट शेप के बलून्स रखे हुए थे और पूरे कमरे में डार्कनेस का राज था। सामने कैंडल्स जल रही थी जो ना सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि कमरे में रूमानियत की फिजा को बरकरार रखने में खासा मददगार साबित हो रही थी। वकास की टेबल पर बजाय लैपटॉप, फाइल्स, पेन वगैरह के गुलाब की पंखड़ियां थी जिनसे लव यू माई वाइफ लिखा हुआ अलग ही नजर आ रहा था। साथ साथ उसके इर्द गिर्द भी कैंडल्स सजी हुई थी।
अच्छा लगा। अभी वो कमरे की खूबसूरती देखने में ही महफ थी कि अचानक उसके कान के पास आकर किसी ने आहिस्तगी से सरगोशी की। अल्लाह भाई, कहाँ रोक दिया यार? क्या क्या कमीनापन है, क्या बोलूं मैं यार तुम्हें, मेरी दोस्त, तुमने कहाँ लाके रोका है यार? मतलब थोड़ा सा तो आगे बढ़ा देती इसको मेरी माँ। खैर, सरप्राइज एपिसोड थी, बहुत जबरदस्त एपिसोड थी, बहुत जबरदस्त बेहतरीन जा रहा है नॉवेल, बहुत टॉप पे जा रहा है, हाई क्लास, जबरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। खुश रहो मेरी दोस्त, बड़ा जबरदस्त नॉवेल जा रहा है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मजीद कामयाबियां दे, और ये नॉवेल बहुत बेहतरीन लग रहा है। खैर, मिलते हैं। और आप लोगों के लिए, अब आप लोगों के लिए, आप लोग याद रखिएगा दुआओं में मुझे भी और HK को भी। और इसके अलावा जो है, हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू नॉवेल आने वाला है आप लोगों के लिए, उसकी एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह, 1-2 दिन में आ जाएगा आप लोगों के लिए न्यू नॉवेल। तो इंशाल्लाह उसकी फर्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलेंगे, मिलने वाले हैं हम बहुत जल्द उस न्यू नॉवेल को लेकर। अच्छा जी, तो वो न्यू नॉवेल जो है ना, वो आप लोगों की हौसला अफजाई, मतलब आप लोग करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे जब उसको, और जब आप लोग उसकी तारीफें करेंगे, पढ़ने के बाद कमेंट्स करेंगे उसके ऊपर, और जो है बहुत सारे व्यूज आएंगे उस पे अच्छे अच्छे, तभी वो नॉवेल हम चलाएंगे। अदरवाइज अगर उस पे व्यूज अच्छे नहीं आए तो हम उस नॉवेल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आप लोग जरा इंतजार कीजिए उस नॉवेल का, और इंशाल्लाह हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तो मिलते हैं हम कुछ दिन बाद, मतलब 1 दिन 2 दिन बाद, जब तक के मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद लाजमी रखिएगा।